Okay, beta. So today we are going to study work, power, and energy. This is one of the important topic in mechanics. Or in this topic, previously studied topics would also be coming, right? Let's say the main topic that can come in this is, let's say, Schubert equations. Then F equals ma. Then vectors, right? So all these things will be including in the questions that will come in work, power, and energy. So this chapter is having three phases. Firstly, we have to work for work. We have to work for work, right? Okay. तो पहले देखते हैं work को. Work, work की definition is very simple. Work is product of force and distance moved in the direction of force. Right? I'll not be writing everything because I'm recording. I'll share that as well. और पहले वीडियो मैंने शेयर भी की हुई है. I need to go through all of this topic as quickly as possible. So इसके बाद डेफिनेशन के बाद इक्वेशन. अच्छा, डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द लाइन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ फोर्स, लाइन मीन्स पैरेलल, इन द सेम डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं. देन द इक्वेशन, this is the normal equation that you have studied in O levels. This equation is only used if force is constant. If the applied force is constant, only then you can use this. But here now we will look upon one more equation, two more equations in fact, for the work done. So let's look upon the other equations. Okay, let's say an object is over here and it is being pulled by a force which is acting at some angle theta, and object direction of motion is this, like velocity is direction of motion. So now we have to find if this object has covered a displacement of s due to this force, how much work is done by this force. ठीक है. So as we see कि भाई this force is not along the direction of motion, so here comes the vectors. So what we do is we resolve it. So we have to resolve this force. So resolving it gives you one component which is adjacent to theta, which is what? Which is f cos theta, and the other component is here which is f sin theta. अच्छा, अब इसमें क्या होएगा? इसमें vertical forces are balanced. So one vertical force is weight, other vertical force is normal reaction. So if they ask you a question from this topic in terms of vectors, they can ask you what are the vertical forces. Tell us about vertical forces. We'll say vertical forces are balanced because this object is moving horizontally. If I drag this chair like this, the same situation, my arm is exerting a force at some angle to the chair. So is this object moving vertically? No. So vertical forces are balanced then. So what are the vertical forces? तो vertical forces क्या है बेटा? एक R है vertical, एक F sin theta है और एक weight है. तो इनकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा? I will write W is equal to R plus F sin theta. So these are the vertical forces. Why I have written they are equal? Because object is not moving vertically, it is moving horizontally. So vertical forces are balanced out. Clear? Okay, next thing. Next thing is, what is the work done? So we will say work done is product of force in the direction of displacement. This is displacement and this is F cos theta, which is in that direction. So we say this is F cos theta into S. This will be the new equation for you. And many questions are there from this कि जिसमें आपको एंगल निकाल के, अब ये मैंने F cos theta क्यों यूज़ किया है? बिकॉज मुझे वो फोर्स चाहिए जो डिस्टेंस के अलॉन्ग है. F is not along that, F is upward. So फिर F cos theta is along that. Okay, so this is number 2. Now number 3 equation. Number 3 is if F is variable, changing, like you are applying a changing force on object. Suppose the scenario is that this is an object which is being pulled in this direction, but this force is changing. Let's say maybe जो बंदा ये force लगा रहा है वो आगे जाके थक जाता है, force slow कर देता है, फिर क्या आ जाता है यार तेज चलो, वो force ज़्यादा कर देता है. तो it means कि how we can find the work when force is changing. तो देखो, we cannot use this. क्योंकि this is only when force is constant.
एक ही फोर्स लग रही है, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस। अब यहां पे फिर क्या होगा, इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं, देखो लेट्स से इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं, और ये ग्राफ है बेटा फोर्स का डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो देखो इसका ग्राफ मैं बना रहा हूं ऐसे। अब व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि भाई आपने जो ये फोर्स लगाई है ना, जो जो डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, आप डिस्टेंस ज्यादा कवर करते जा रहे हो, आप इस फोर्स को बढ़ाते जा रहे हो, यही पता लग रहा है ना, फोर्स बढ़ रहा है। इसकी कोई भी शेप आ सकती है, एनी शेप कैन कम। मैंने एक शेप बनाई है, इसकी कर्व लाइन भी आ सकती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी आ सकती है, किसी भी तरह से ये ग्राफ आ सकता है। अब इससे हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहां तक लेट्स से कि मैक्स फोर्स ये लगी है भाई इतनी, और इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो हाउ मच इज द टोटल वर्क डन बाय दिस। तो हम ये नहीं यूज करेंगे, क्यों भाई, यहां तो फोर्स जीरो थी, फोर्स बढ़ी और ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, फिर मैक्सिमम हो गई, तो फोर्स तो चेंज हो रही है, आप ये तो नहीं लगा सकते। क्या लगाओगे यहाँ पे तो एक फोर्स की वैल्यू लिखनी होती है। तो व्हाट वी डू, नहीं, ग्रेडियंट या एरिया से देखो क्या मिलेगा, ग्रेडियंट से क्या मिलेगा, नथिंग, एफ ओवर एस इज नथिंग। एरिया से क्या मिलेगा, एरिया क्या होता है, y इंटू एक्स, वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। तो इसका मतलब यह है कि वी विल से एरिया अंडर एफ एस ग्राफ विल टेल यू अबाउट वर्क डन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यू विल फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया कैसा है, जैसा होगा, यहां कैसा लग रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, इर्रेगुलर शेप हो सकता है। तो उसके लिए हमने पीछे काइनेमेटिक्स में जो पढ़े थे कि इर्रेगुलर एरिया कैसे निकालते हैं, उसी काउंटिंग बॉक्स से आप निकालेंगे। अच्छा, अब इसका फिलहाल एरिया क्या लग रहा है, ट्राइंगल, तो ये है 1/2 एफ इंटू एस, और एफ क्या है, एफ मैक्स, एफ मैक्स, क्योंकि मिनिमम तो जीरो है ना, राइट। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड वर्क डन, ये। और इसको एक और भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इफ यू लुक क्लोजली ऑन दिस एफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज है। अब एवरेज कैसे होता है, एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इनटू एस। मुझे बताओ यहां मिनिमम कितनी है फोर्स, हाउ मच इज मिनिमम, जीरो। तो जब ये जीरो लगाओगे तो क्या होएगा, 0 प्लस एफ मैक्स ओवर 2 इंटू एस, तो क्या बन जाएगा, एफ मैक्स डिवाइड बाई 2, यही बन जाएगा ना जो मैंने यहां लिखा है। तो ये वाला बन जाएगा 1/2 एफ मैक्स इंटू एस, दैट्स इट। सो दिस इज द वे। सो समिंग इट अप, वर्क क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, वर्क निकालने के 3 तरीके। नंबर 1, W is Fs, वेरी सिंपल, ओ लेवल स्टफ। ये कब लगाते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो। नंबर 2, अगर फोर्स किसी एंगल पे हो तो फिर कैसे निकालते हैं, जो ब्लैक एरो है F, ये फोर्स लग रही है एक एंगल पे, यू रिजॉल्व इट, वेक्टर्स कम, यू रिजॉल्व दिस F एंड यू लुक फॉर द कंपोनेंट दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, that is in the direction of distance traveled, right? So you say in the distance traveled f cos theta, so f cos theta into s, so this is your second equation. Third equation, if I say the force is going to change, you're doing some work and your force is changing and you know the distance, how much distance is moved, और आपकी force continuously change हो रही है, उसकी बहुत सारी values है ranging from minimum to maximum. So how you can find total work done? So we will say kg plot the graph of force versus displacement, and then area under that graph gives you work done. Again, how you know area? आपने बेटा एरिया के लिए y और x को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अगेन ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्रेडियंट के लिए आप y और x को डिवाइड करते हो, एरिया के लिए आप y और x को मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स इट। ये कभी चेंज नहीं होगा। दीज टू आर द फिक्स्ड रूल्स फॉर होल फिजिक्स। कोई भी ग्राफ बना हुआ है, ग्रेडियंट क्या है, y ओवर x, फौरन सोचो y ओवर x, f ओवर s क्या बनता है, नथिंग। यू विल कम अप कि यार इससे तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। एरिया सोचो f इंटू एस, तो आप फौरन आपको पता लगेगा f इंटू एस, तो वर्क डन होता है, तो आप कहोगे अच्छा इसके एरिया अंडर द ग्राफ से हमें वर्क डन मिलता है। सेकेंड स्टेप, लुक एट द एरिया कि उसकी शेप क्या है, उसकी शेप के हिसाब से फॉर्मूला लगाना है आपने। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनता है,
कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फोर्स होती है. लाइक 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें फोर्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है. दैट्स वाई मैंने ये बनाया है. 10% में ये होता है कि फोर्स डिक्रीज भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो उसमें क्या होगा, जो उसका एरिया होगा, जो शेप बन रही होगी, उस शेप के हिसाब से आप फॉर्मूला लिखोगे. अच्छा, फिर ये क्या मैंने किया है, एक बात आपको और बताइए कि एवरेज फोर्स, ये भी फॉर्मूला हो सकता है. वर्क डन इज एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग, फाइंड एवरेज फोर्स. जिस तरह आप कहते हो कि सर एक टेस्ट का ना देखें, 4 टेस्ट का रिजल्ट देखें. क्यों? उसमें एवरेज आ जाएगी ना, तो उसमें बेहतर हो जाएगा. एक में देखोगे तो खराब होगा. तो इधर भी जब फोर्स चेंज हो रही है तो हम क्या करते हैं, एवरेज यूज करते हैं. एवरेज हमेशा कैसे लेते हैं, मिनिमम मैक्सिमम उनको ऐड करते हैं और फिर नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं. एवरेज यही होता है ना, सम ऑफ रीडिंग ओवर नंबर ऑफ रीडिंग. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ओनली 2 फोर्स वैल्यूज, मिनिमम एंड मैक्सिमम. दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट विद ओनली 2. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट इन इट, एनीवन? क्यों भाई मुबशर, समझ आ गई ये बात की? ओके, नेक्स्ट थिंग इज जूल. हाउ वी डिफाइन जूल और जूल और जूल. जूल क्या होता है? जूल इज न्यूटन इनटू मीटर. इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर. मतलब आई एम अप्लाइंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड इट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. अब मेरे पास नहीं है, नीचे ही है. ओके, so it means के when you apply a force of 1 Newton and the object cover a distance of 1 meter, it means के work done is 1 joule. तो आपने 1 joule का वर्क किया. Simple is that. ठीक है. अच्छा, is it a scalar or vector? क्यों भाई, वर्क क्या है? वर्क इज स्केलर, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है. अगर मैं आपसे करूं यार कोई काम करो, तो मैं ये नहीं कहूंगा इस डायरेक्शन में काम करो, उस डायरेक्शन में काम करो, या आपने काम किया भाई किस डायरेक्शन में काम किया. तो डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई दिस इज स्केलर. ठीक है, शुड आई इरेज इट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एनर्जी नाउ. व्हाट इज एनर्जी? जी, जो फोर्स हम बैक कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन तो होगी. हाँ हाँ, जाहिर सी बात है. इसकी वजह से वर्क कीजिए. नहीं, वो वेक्टर स्केलर का और क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया डायरेक्शन वाला नहीं है. ठीक है. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है. प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर. ये मैथ्स के रूल होते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. लेकिन हम यहाँ पे ए लेवल्स में, इवन कैम्ब्रिज ए लेवल्स में भी हम ये नहीं पढ़ाते, सिर्फ स्ट्रेट बता देते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज आर वेरी लिमिटेड इन नंबर. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, बस. बाकी सब स्केलर है. दैट्स वाई हमें वो रूल सीखने की जरूरत नहीं होती. दैट्स वाई दोज रूल्स आर नॉट इन अवर सिलेबस. ओके, सो लेट्स मूव टू एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी बेटा? हाउ वी डिफाइन एनर्जी? एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क. Ability of object to do some work. Okay, next thing, what is its unit? Its unit is joule or Newton meter, and again it is a scalar quantity. So work and energy both are almost similar things, like very close friends, similar nature. नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, आपने लिखनी है. Ability of object to do some work. लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत सिंपल है. ये दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो वी हैव टू लुक फॉर द टाइप्स ऑफ एनर्जीज. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, सो मेनी टाइप्स. साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है. तो आई मीन देयर आर और भी बहुत सारी हैं, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मतलब बहुत सारी हैं. लेकिन व्हाट वी हैव टू स्टडी अ लिमिटेड सेट ऑफ एनर्जीज. ठीक है. जिसमें पहले हम बेटा पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जीज. मैकेनिकल एनर्जीज. What are mechanical energies? These are the energies which are related to movements. Mechanical means moving things. So energy associated with moving things are called
मैकेनिकल एनर्जीज। अब बेटा इसमें पहली एनर्जी क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन आती है। सो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मूवमेंट। बस, एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पीड, ability of object to do work due to its momentum. That's it. So that's how we define it. ठीक है? So we say it is ability of object to do work due to its movement or motion or speed or momentum. ठीक है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द फॉर्मूला इज वेरी फेमस। इट्स फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वेयर। एवरीवन नोज दैट। इसमें m क्या है? मास, जो हमेशा किलोग्राम में होती है। v क्या है? स्पीड, जो हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक इन जूल, ऐसा यूनिट। बट देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस, देयर इज अ सेकेंड फॉर्मूला जो आपको नहीं पता अभी। वो अब हम सेकेंड फॉर्मूला इसका देखते हैं, वो क्या है। सेकेंड फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। समटाइम्स यू डू वर्क ऑन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, दिस चेयर अगेन इज एट रेस्ट, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मूव दिस, आई एम मूविंग इट। अब इस चेयर में, मूविंग चेयर में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है ना। फ्रॉम वेयर दिस काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग? इन द चेयर। फ्रॉम वेयर दिस चेयर इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू माई वर्क डन। आई एम डूइंग वर्क ऑन इट, सो द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आई हैव डन ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। आपको आवाज भी आ रही थी ना जब मैं इसको मूव करा रहा था। तो इट मीन्स कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर साउंड एनर्जी भी है और उसके बाद इसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है, चूंकि ये फ्लोर पे ड्रैग कर रहे हैं। तो बेसिकली द वर्क दैट आई हैव डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेयर, थर्मल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ऐसे ही है, थर्मल, साउंड आर वेस्टेड एनर्जी, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट अभी। तो वी से कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इज कि लेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग पुल्ड इन दिस डायरेक्शन फॉर सम डिस्प्लेसमेंट s, मतलब वो कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने उसको आगे मूव किया। अब हमें कहते हैं कि यार यहां पे वो रेस्ट पे था, तो बताओ कि इस डिस्प्लेसमेंट के बाद जब इधर पहुंचा है तो यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? प्रोवाइडेड ideal condition is there. Ideal condition mean there is no friction, there is no energy losses. Ideal condition mean no energy loss. It means the work that you do is completely converting into its kinetic energy. तो हम कहेंगे भाई ये kinetic energy जो है ना, change in kinetic energy, this is equal to work done on object. और इसको हम बेटा कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये क्या होता है? आप जितना वर्क करोगे ऑब्जेक्ट की उतनी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। आप जितनी ऑब्जेक्ट की एनर्जी यूज करोगे वो उतना ज्यादा वर्क करेगा। गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया, कौन सी एनर्जी कम होगी? उसकी डिक्रीज होएगी, केमिकल एनर्जी। फ्यूल बर्न हो रहा है तो केमिकल एनर्जी इज डिक्रीजिंग ना। तो गाड़ी केमिकल एनर्जी का क्या करेगी? उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करेगी या इंजन वर्क कर रहा होगा? तो हम कहेंगे भाई इंजन इज डूइंग वर्क, द कार इज डूइंग वर्क बिकॉज इंजन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन इट and the car is moving. So we say the decrease in chemical energy of the petrol results in work done by the engine on the car, because engine exerts the force and car covers some distance. And then we say that force into distance, like work done by engine results in what? रोहान, work done by engine से क्या होगा? इंजन अगर काम कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क डन बाय इंजन फिर किस चीज में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। क्योंकि कार मूव होना शुरू हो जाएगी ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, तो वर्क डन क्या होएगा इस केस में? रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
रिजल्टेंट फोर्स. सो यू ऑलवेज लुक फॉर रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स को आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इसकी एग्जांपल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी मैं एग्जांपल एक करा देता हूं. फॉर एग्जांपल ये एक व्हीकल है और ये मूव कर रहा है इस तरफ, और इस पे ये अप्लाइड फोर्स है 1000 न्यूटन, और बेटा इस पे अपोजिंग फोर्सेस जो है जिसमें फ्रिक्शन भी है और एयर ड्रैग भी है, ये दोनों मिलके 400 न्यूटन बन रही हैं अपोजिंग फोर्सेस. और उसके बाद बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो मास है वो है कोई 50 किलोग्राम, और इस ऑब्जेक्ट ने इस सिचुएशन में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इसने इस सिचुएशन में कोई डिस्टेंस कवर कर लिया 1.5 किलोमीटर्स का, नहीं ज़्यादा हो गया, 150 मीटर कर देते हैं, 150 मीटर. अब आप मुझे बताओ कि उस पे फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट. यहां पे ये रेस्ट पे था पहले, शुरू में मतलब वो रेस्ट पे था जब उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हुई थी, और फिर वो मूव करता गया. तो 150 तक बताओ कितना वर्क हुआ है, सॉरी कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है. तो फर्स्ट फार्मूला आपके जहन में तो यही आना है, हाफ mv². फिर आप कहोगे यार यहाँ पे जो है वो किधर है, v किधर है? v नहीं है, लेकिन आप एक रूट निकाल सकते हैं, v के लिए भी फाइंड कर सकते हैं आप, सूवर्ट इक्वेशन. अब यहाँ पे सूवर्ट इक्वेशन आ जाएगी. आप कहेंगे ये रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी हमें देखनी है कितनी है, डिस्टेंस हमें पता है, और एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है 1000 माइनस 400 तो 600, और मास भी पता है, तो आप एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे? आप कहेंगे F ओवर m, तो F है 1000 माइनस 400 और मास कितनी है 50, तो ये 600 ओवर 50, तो ये आ जाएगा 12, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12 ही आएगा ना. हाँ, अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो अब आपने क्या निकालना है? वेलोसिटी. अब वेलोसिटी निकल आएगी, सूवर्ट इक्वेशन यूज करो, सूवर्ट इक्वेशन. तो सूवर्ट इक्वेशन में आपके पास u0 है, a12 है, डिस्टेंस 150 मीटर है, और आपने v निकालना है, और मिसिंग क्या है? टाइम. तो कौन सी इक्वेशन? ये मैं डिलिबरेटली करा रहा हूँ थोड़ा, इक्वेशन जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा रिकॉल कराने के लिए. तो आप क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? 2as is v² minus u². So you get 212 150 v² minus 0. ठीक है, तो 300 3000 एंड 3600, तो इसका आएगा 3600. ठीक है, फिर आप इसका लोगे स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये आएगा 60, तो इसका मतलब है 60 मीटर पर सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा. जब ये 60 आ गया, अब आप कहेंगे बस प्रॉब्लम इज सॉल्व. यूज हाफ mv², 1/2 इंटू 50 इंटू 60 का स्क्वायर, यू विल गेट द आंसर. लेकिन इतना लंबा काम है, इसकी बजाय एक शॉर्टकट है. शॉर्टकट ये है कि यूज दिस रिजल्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. हाउ मच इज रिजल्टेंट फोर्स? 600 इंटू हाउ मच इज डिस्टेंस? 600 इंटू 150, यू विल गेट द आंसर. तो देखो एक रूट क्या है, एक रूट हाफ mv² वाला ये सारा, और एक क्या है ये वाला. आपने सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द आंसर. तो रोहान ये क्यों किया है? ये क्या है, इसके बिहाइंड पीछे लॉजिक क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि भाई जो आप वर्क करते हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? दिस इज, यार याद रखो ये वर्क वाला फार्मूला है ना, F इंटू एस इज वर्क फार्मूला ना, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है नबिया? क्या डिफरेंट है? इसमें रिजल्टेंट फोर्स है. बस ये ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में यहां रिजल्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस आएगा. दैट्स इट. ठीक है बेटा, एनी डाउट इन इट? नहीं? मुश्किल है? न्यूट्रल? अच्छा सही है. ओके जी, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी. क्या नहीं समझ आई? हाँ ओके. एक चीज बेटा और रहती है, काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन. अच्छा मैं सोचता हूँ मैं शॉर्ट कराऊंगा, लेकिन फिर जाहिर है बीच में ब्रेक्स लग जाती हैं. काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी है बेटा, ये भी आपको आनी चाहिए. के ई इज हाफ mv²
तो अब आप ये सोचो कि यार ये कैसे बनी है, इक्वेशन कैसे बन गई है, ठीक है। तो दिस इज डेरिवेशन, तो हमने इसकी डेरिवेशन अभी करनी है और देखना है कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। ओके, इसको जरा ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर समझ ना आई तो बाद में आपके सर में दर्द भी हो सकता है इस इक्वेशन को देख के कि भाई ये किया क्या है। ओके, सो पहले हम करते हैं बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। प्लीज बेटा फोकस हियर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। कोई बताएगा क्या होता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? काइनेटिक नहीं, एनर्जी। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बस इसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, जितनी एनर्जी चेंज होगी उतना वर्क होगा, या जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ नीचे फ्लोर पे गिर जाती है, आप उसको उठा के ऊपर रखते हो, तो उस ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी आती है? जीपी। कहाँ से आई जीपी? कैसे आई? आपने वर्क किया है भैया, आपने वर्क किया है ना, आपने उसको उठाया है, फोर्स लगाई है, डिस्टेंस कवर किया है, फोर्स और डिस्टेंस, और उठा के यहाँ रखा है। या आप लोगों के जो शेल्फ या कबर्ड होते हैं, नीचे से चीज़ उठा के जब ऊपर रखते हैं तो क्या होता है उसमें, आप जब नीचे से उठा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स कवरिंग डिस्टेंस, तो फोर्स भी ऊपर डिस्टेंस भी ऊपर, सो यू आर डूइंग सम वर्क। उसको जब आप शेल्फ में रख देते हैं तो हम कहते हैं यार इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी है? जीपीई। वो कहाँ से आई है? कैसे आई है? खुद से ही आ गई है उसमें। क्यों भाई, कैसे आई है जीपी? कुछ ना बताओ। वर्क डन, बिकॉज यू हैव डन सम वर्क ऑन इट। तो दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि भाई आप जितना वर्क करोगे वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, या जितनी एनर्जी यूज करोगे उससे उतना ज्यादा वर्क होगा। एनर्जी यूज करके वर्क हम कहाँ करते हैं? व्हीकल्स में। व्हीकल में हम केमिकल एनर्जी पेट्रोल की यूज करते हैं, वो बर्न होता है। इंजन जो है वो वर्क करता है, इंजन वर्क करता है। मतलब मेन इंग्रेडिएंट क्या है व्हीकल्स के अंदर? इंजन। दैट इज कन्वर्टिंग एनर्जी एंड अप्लाइंग द फोर्स। फोर्स अप्लाई करता है, व्हीकल मूव होता है, तो हम कहते हैं भाई वर्क हो रहा है। तो हम कहते हैं देखो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है लेकिन सारी वर्क में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। ओके, सो वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक जरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और उसकी वेलोसिटी u है, गौर से देखना है बेटा, ये दिस विल बिल्ड योर एनालिटिकल स्केल इक्वेशन हैंडलिंग स्केल, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट m मास u वेलोसिटी से जा रहा है ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हम ये करते हैं कि उस पर एक फोर्स लगाते हैं, इधर कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन भी हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। अच्छा, उसके बाद मुबशर यहां ध्यान दो यार। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। जाहिर है जब आपने फोर्स इस पॉइंट से लगाई ना, तो गाड़ी ने मतलब एक्सेलरेट, हमने कहा यार एक्सेलरेट करो गाड़ी को, तो इंजन ने ज़्यादा फोर्स लगाई, कांस्टेंट फोर्स, और ये गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ उसकी वेलोसिटी v हो गई, चेंज हो गई, लाइक v इज़ ग्रेटर देन u, क्योंकि उसने एक्सेलरेट किया है। इस दौरान उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। अब देखो इस केस में जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स को निकालने का एक तरीका न्यूटन सेकंड लॉ होता है, F इक्वल्स ma, होता है ना, F इक्वल्स ma। तो मैं कहता हूं यार इस फोर्स की जगह ma लिख दो। क्या लिख दो? ma, राइट। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट जो इसने कवर किया है, उठ जाओ यार सुबह हो गई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे, ये जो कवर उसने किया, ये हम किससे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे सुवर्ट इक्वेशन से। मतलब हम कर क्या रहे हैं? लेट मी टेल यू, मैंने वर्क से स्टार्ट किया F इंटू एस से, और मैं कह रहा हूं यार F इंटू एस को चेंज करना है और हाफ mv स्क्वायर ले आना है। तो आई एम गोइंग टू चेंज F एट एस इंटू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए मुझे m तो मैं ले आया, देखो m मैं ले आया हूं ना, यहाँ पे F की जगह ma लिखा तो m तो आ गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए? v चाहिए ना। अब v के लिए मैं काम कर रहा हूं कि यार किसी तरह v आ जाए यहाँ पे। उसके लिए मैं इस डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहा हूं, इसकी जगह मैं सुवर्ट इक्वेशन लगाता हूं। कौन सी? मेरे पास u है, मेरे पास v है, अच्छा मेरे पास उसके बाद a भी है, और s का एक्सप्रेशन मुझे निकालना है।
मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम आपके पास भी नहीं है, थोड़ा टाइम है, रह गया है ना। अच्छा, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप लोगों को तो नजर ही नहीं आ रहा होगा यार। अच्छा, तो 2as इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप देखो यहां से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? s चाहिए। तो मैं कहूं यार s चाहिए, बाकियों को उधर भेज दो भाई, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब हमें सिर्फ अच्छे बच्चों की जरूरत है, बस बाकी चले जाओ उधर। ये मतलब सारे यही कहते हैं ना। s ये 2a उधर से इधर आ गया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। अब मैं कह रहा हूं यार यहां लगा दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। बस यहां हमारी स्टोरी थोड़ी क्लोज हो रही है, बस खत्म हो रही है। इसके बाद मैंने इसको बस कंबाइन करना है और कंबाइन करके मेरे पास आंसर आ जाना है। तो मेन थिंग इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह m में, डिस्प्लेसमेंट की जगह ये लगाया सुवर्ट इक्वेशन से, और इसके बाद अब मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा, कैसे आएगा फाइनल आंसर? देखो देखो जरा यहां, एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। तो क्या होगा यहां पे? ये a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा? m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। अब मैं कहूंगा यार थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लो इसको, 1/2 पहले ले आओ, साथ m लिख दो और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दो, ठीक है। या मैं ये कहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज, 1/2 m को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मैं कहूंगा यार ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन तो एनर्जी के बराबर है, इसलिए ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दूंगा, और यहां आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले 0 हुई, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो यूजुअली हर ऑब्जेक्ट रेस्ट से ही स्टार्ट होता है। अगर मैंने इस चेयर को ड्रैग करना है तो पहले तो ये रेस्ट पे ही है, तो u 0 होगा। जब u 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये 0 होके ये खत्म हो जाएगा, तो you विल ओनली लेफ्ट विद हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो दिस इज द डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में इक्वेशन हैंडलिंग ज्यादा है, दिस इज इक्वेशन हैंडलिंग, ओनली दिस इज द नॉलेज पार्ट। तो इसको हम कहते हैं बेटा दिस इज योर नॉलेज पार्ट, नॉलेज पोर्शन, और दिस इज योर इक्वेशन हैंडलिंग पोर्शन, ठीक है। राइट, तो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दैट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्यों भाई, क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। कितना टाइम है हमारे पास? ये आउट ऑफ चार्ज है, हाँ 9 मिनट है, बहुत टाइम है यार, आज तो टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा। अच्छा हाँ, बेटा अभी तो ये 9 मिनट ख़त्म होंगे और अगले 30-40 मिनट भी है ना। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको टाइम की अहमियत का पता लग गया है कि 7 मिनट रह गए हैं। गुड गुड, दैट्स रियली गुड यार। ओके, नेक्स्ट एनर्जी दैट वी गोना स्टडी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब है एबिलिटी। भाई आप में कितनी एबिलिटी है कि आप A ग्रेड ले सकें, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियली आप कितना काम कर सकते हैं, पोटेंशियल मीन योर एबिलिटी, कि हाउ मच यू आर एबल टू डू समथिंग, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क ड्यू टू चेंज इन अ सर्टेन पोजीशन, ठीक है। So we say ability of object to do work due to change. Remember, this is not GPE. I'm not talking about GP. I'm talking generally about potential energy. Because potential की आगे बहुत सारी types हैं, उनमें से एक टाइप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एक इलास्टिक पोटेंशियल है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक मैग्नेटिक पोटेंशियल है।
हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नहीं पढ़नी, हमने सिर्फ पढ़नी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू चेंज इन पोजीशन इनसाइड अ फील्ड। ओके, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हैमरिंग अ नेल इनटू अ वुड और कंक्रीट फ्लोर और एनीथिंग। देखो, अगर ये नेल है और ये हैमर है, अगर मैं हैमर को इसके ऊपर रख दूं और मैं कहूं ये लो यार हैमर और नेल, चलो भाई इसको इन ड्राइव करो इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऐसे? नहीं ना। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मूव द हैमर अप। तो आप जब हैमर को ऊपर मूव कर रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी आ रही है? पोजीशन चेंज कर रहे हो ना। रिमेंबर ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोजीशन इनसाइड अ फील्ड। तो व्हेन यू मूव द हैमर, सो इसकी हाइट चेंज हो रही है, तो व्हाट एनर्जी इट इज हैविंग एट दिस पॉइंट? जीपी। और इन विच फील्ड इट इज देयर, इट द हैमर इज प्रेजेंट। किस फील्ड के अंदर इसकी पोजीशन चेंज हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुई है, मैग्नेटिक में, या ग्रेविटेशनल में? ग्रेविटेशनल में। तो इसलिए फील्ड लिखा हुआ है। तो जब ये हैमर ऊपर जाएगा इसमें जीपी आएगी। अब बाद की स्टोरी फिर बाद में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नीचे आएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, इसको हिट करेगा और वर्क डन करेगा और इसको ड्राइव करेगा। इसके पूरे क्वेश्चंस भी हमने करने हैं, ठीक है, जिसमें सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी। ओके, सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ पीई। अच्छा, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक, हाँ, अटेंडेंस नहीं ली? ओह अच्छा, अटेंडेंस आज नहीं ली, और मेरा ख्याल है कि पेज भी नहीं है। पेज ले आओ यार वहाँ से, पिक्चर लेके कौन देखता रहेगा? आप तो देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते ना भाई। अली एक ले आओ, अटेंडेंस शीट ले आओ जल्दी से। ओके, सो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है, बट क्या करें क्योंकि जल्दी करना है ना, इसलिए। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसी तरह डिफाइन करना है। ability of an object, ability of a mass, actually ability of a mass to do work due to change in its height inside a gravitational field. तो इसका मतलब है आप यहां लिख दोगे ability of mass to do work due to change in height inside a gravitational field. तो इन तीनों को आप चेंज कर दोगे, तो that will be the definition of ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यही वर्डिंग यही यूज करूंगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? रबर बैंड में, स्प्रिंग में, क्योंकि ये भी बहुत सारी जगहों पे हम यूज करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे एबिलिटी ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। अब यहां हम फील्ड नहीं लिखेंगे उसमें, क्यों? क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई फील्ड नहीं होती, इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। सो वी से एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन। सिंपल ये कह दो, एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू चेंज इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, जीपी की बात पहले करते हैं। बेटा जीपी का एक फॉर्मूला होता है mgh, और इसका एक दूसरा वर्जन क्या होता है? GPE इज इक्वल टू वेट टाइम्स हाइट। mg इज वेट। तो ये भी हो सकता है, बास क्वेश्चन में वो वेट दे देता है, डायरेक्ट मैथ्स नहीं बताता, ठीक है। एक हमने MCQ किया भी था इसका। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, ऑन स्लोप्स या इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, हाँ, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, तो फिर उसमें जीपी कैसे चेंज होगी? लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। बेटा आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तो रात को सोया करो ना यार। चेंज इन लेंथ, या अच्छा बेटा देखो, यहां देखो, ये आपने इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है और इसकी हाइट है h,
बहुत गौर से देखना है बेटा इसको। या फिर यहां पे, अच्छा ये H है, अब आपने ये बताना है यार इसको यहां P पॉइंट से हम Q पॉइंट तक लेके आए हैं। सो हाउ मच वर्क यू हैव टू डू इन ऑर्डर टू मूव दिस ऑब्जेक्ट ओवर देयर। आप फोर्स कितनी लगा रहे हो? F। कितनी लगा रहे हो? F। और एक और बात कि इसमें जो कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट इसके लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। फ्रिक्शन इज आल्सो एक्टिंग ऑन इट। तो अब हमने देखना है कि यार ये वर्क जीपीई ये जब यहां पे जाएगा क्यू पॉइंट पे, तो असल में तो आपने बताना है जीपीई एट क्यू कितनी है। असल में तो ये बताना है आपने, हाउ मच इज जीपी एट क्यू, राइट। और एक बात और इसमें हम कर लेते हैं, ये एच यहां पे नहीं गिवन, हाइट नॉट गिवन, गिवन है तो फिर तो इजी हो जाएगा। ये इसकी लेंथ गिवन है आपको, दिस लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ द स्लोप इज एल। सो वी से, अब इसको बेटा गौर से देखना है, चूंकि ये इंक्लाइंड स्लोप पे जा रहा है, वर्टिकल ऊपर नहीं जा रहा। वर्टिकल जा रहा होता तो हम कहते हैं यार mgh, बात खत्म। हाइट कितनी मूव हुई है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यू गेट द आंसर। बट बेटा यहां देखो यार, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आप इसको लेके जा रहे हो, तो हम कहेंगे यार इसका अल्टरनेट फॉर्मूला देखो, वो होगा जीपीई इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क वाला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा। आप देखो इस पे वर्क कितना हुआ है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखो इस पे फोर्स कितनी लग रही है, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स कितनी है, हाउ मच इज दिस एफ। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, आप फोर्स कितनी लगा रहे हो, एफ। तो हम कहेंगे भाई ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एक्टिंग इज एफ, राइट। तो हम लिख देंगे सिंपल एफ, जो लगा रहे हो वही लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स। हाँ, ओ अच्छा फ्रिक्शन भी है, सॉरी आई फॉरगॉट दैट। दिस माइनस फ्रिक्शन, आपको फ्रिक्शन को माइनस करना है, राइट। और फिर आपको लेंथ ऑफ द स्लोप से मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी इसकी लेंथ है एल। तो इस तरीके से आप उसकी जीपी निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे जीपीई एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक है। ये उसकी जीपी हो जाएगी, राइट। वर्क डन से निकाला है आपने, वर्क डन से निकाला है कि भाई इसमें आपने कितना वर्क किया, जितना वर्क किया है वो जीपीई में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा एक सेकंड, मैं मैम से बात करता हूँ, अगर वो क्लास उधर ले लेती हैं तो फिर हम यहीं बैठे रहते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होगा। 5 सेकंड की ब्रेक ले लें, आप इधर बैठे बैठे ज़रा सांस ले लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आज अगर पॉसिबल है तो क्लास मिल सकती है, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट कराना है। अगर मैं उधर लेके गया तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। सेशनल था ना, अगर आप 5 मिनट पहले बता दिया करें तो मैं। अच्छा वेरी सॉरी फॉर दैट। सिर्फ आज के लिए, बाकी तो कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है, थैंक यू। चलें बेटा, बैठे रहें इधर ही, गुड न्यूज़, बैठे रहें। हाँ हाँ, आप जाओ 5 मिनट ब्रेक ले लें, सांस ले लें, गपशप लगा लें, बातें शातें कर लें, ठीक है। हाँ जाओ ओ 5 मिनट का टाइम है। नहीं 11 बजे तक, एंड तक नहीं, क्योंकि मेरी इसके बाद मेरी क्लास है, इसके बाद मेरी अपनी 11-10 पे क्लास है। नहीं कैंटीन नहीं जाना बेटा, कैंटीन 10 मिनट जाने में लगते हैं, रहने दो। और नहीं भाई, ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट स्लोप। और आप अभी जाके जो मैंने वर्कशीट शेयर की हैं आप उसको देखना, उसमें जीपी के ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो स्लोप वाले हैं, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ओ लेवल्स में आपको पता है आपने स्ट्रेट लाइन मोशन वाले ज़्यादा किए हैं, राइट, एमजीए, तो उन्हें पता है कि भाई ओ लेवल्स में ये कर चुके हैं, इनको पता है इस चीज़ का। अब ज़्यादा क्वेश्चन स्लोप वाले होंगे इसमें, राइट। अब देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को स्लोप पे ऊपर लेके जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना होगा? नहीं बेटा, नहीं है। कौन सी मैम? अच्छा ठीक है जोया, आप चली जाओ, फिर आपने वीडियो देखनी है इस टॉपिक की, ठीक है, ओके। हाँ 12 बजे है ना? नहीं, इनका तो अभी हो रहा है, तो आपका 12 बजे क्यों है? जाओ आप दोनों भी।
बारह बजे कौन बायो के और कौन है यार? चलो उसने जोया ने पढ़ी हुई हैं चीज़ें पहले, वो ऑलरेडी एकेडमी से पढ़ के सारा सिलेबस एएस का वो पढ़ के आई हुई है, कंप्लीट सिलेबस, इसलिए ठीक है वो चली गई है, खैर है, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ इधर देखो ज़रा, अच्छा देखो बेटा, आपने अगर जीपी निकालना है आप गौर से देखो, टेंशन फ्री होके देखना है इसको, क्योंकि तीनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं और इसके ही क्वेश्चंस ऐसे ही आने हैं। एक ऑब्जेक्ट है मास m दैट इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम p टू q, ठीक है। आप देखो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है बेटा तो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन p एंड q कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि भाई वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्पीड स्टेडी स्पीड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, राइट? समझ आ गई बात की? नेक्स्ट ये है कि एक तो ये मैंने लिखा f माइनस एफ इंटू एल, दूसरा ये है कि एक और तरीका ये है कि जो लेंथ l है ना इसको रिजॉल्व कर लो। इमेजिन कि ये एक वेक्टर है और ये x एक्सिस है और थीटा एंगल पे है और आपने इस वेक्टर l को रिजॉल्व करना है, तो जब आप इस वेक्टर l को रिजॉल्व करोगे तो ये नीचे वाली चीज क्या बनेगी? l cos थीटा, चूंकि आप l को रिजॉल्व कर रहे हो ना, तो ये जो इसके सामने वाली चीज ये वाली बनेगी, ये क्या होएगी? दिस वन, ये क्या होएगा? l sin थीटा, चूंकि थीटा के अपोजिट क्या होता है? हमेशा sin थीटा होता है। दैट्स व्हाई दिस विल बी l sin थीटा। अब जब ये ट्रॉली यहां पहुंचेगी तो इसकी मास m है, इसकी हाइट l sin थीटा है, हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी हाइट ये वाली इस पॉइंट पे l sin थीटा है, सो वी विल यूज अनदर वे mgh। तो mg ये है और h की जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से? l sin थीटा, तो हमने हाइट की जगह l sin थीटा लिख दिया, तो यू कैन गेट दैट। क्या? हाँ तो वर्टिकल है ना, ये है ना, वो वर्टिकल ये है ना, ओ भाई वर्टिकल यहाँ देखो, जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, लेट्स से ये वेक्टर l है थीटा एंगल पे, तो एक आता है ये l cos थीटा, ठीक है बेटा, एक आता है यहाँ पे l sin थीटा, ये इधर भी हो सकता है इधर भी तो हो सकता है ना, एक ही बात है ना, पैरेलल है, लेंथ को रिजॉल्व किया है ना, तो ये इसका l sin थीटा ये कंपोनेंट आ गया। ओके नेक्स्ट, एक और आखिरी तरीका क्या है? आखिरी तरीका है mg sin थीटा इंटू l। ये क्या है? अब mg sin थीटा इंटू l। आप देखो बेटा, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचे है इधर, बेटा अब ये गौर से देखना है, इसका मास या वेट इधर एक्ट कर रहा है और इसका एंगल कितना है? अगर इधर थीटा एंगल है तो इधर भी थीटा है, ऐसे ही है ना। अब देखो, अब जो है डाउनवर्ड फोर्स कितनी ये इसको रिजॉल्व करो तो ये क्या आएगा? mg cos थीटा, और डाउनवर्ड कितनी फोर्स लग रही है? mg sin थीटा, mg sin थीटा है ना, तो अगर डाउनवर्ड mg sin थीटा है तो जो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो ये फोर्स भी बिल्कुल इसके इक्वल होगी, क्योंकि हम फोर्स पुल करने के लिए उतनी लगाते हैं जितना उसके अपोजिट फोर्स लग रही होती है। तो अगर mg sin थीटा डाउनवर्ड है तो हम भी ऊपर mg sin थीटा के इक्वल ही लगा रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। वन मोर थिंग, अगर ये रजिस्टर है, मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर उठाता हूं तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर? कितनी? किसके इक्वल होगी? जो इसका वेट है, जो इसका वेट है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि यार ये स्लोप है, दिस वन इज स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप पे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं कांस्टेंट स्पीड पे, तो मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं? अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं, जितनी इसके अपोजिट फोर्स लग रही है डाउन द स्लोप, तो डाउन द स्लोप क्या लग रहा है? mg sin थीटा, यही लग रहा है ना। डाउन द स्लोप हमने पढ़ा है हमेशा mg sin थीटा लगता है। अगर mg sin थीटा डाउन है तो मैं ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूं? mg sin थीटा। देखो इसीलिए अगर इसको मैं यूं उठाऊं तो मुश्किल होगा, मुझे फील हो रहा है यार मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, लेकिन अगर इसको मैं यूं मूव कराऊं तो मुझे थोड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है। आप खुद फील भी कर सकते हो, खुद देख सकते हो। अब मैं यहां से फोर्स कम लगा रहा हूं, लेकिन यहां रख के मैं यूं लगाऊं तो मुझे अब फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा वेट के बराबर है। ये फोर्स mg sin थीटा है जो वेट से थोड़ी है, वेट लेस देन फोर्स है, लेस देन वेट है, ठीक है। ओके, सो इट मींस के मैं फोर्स कितनी लगा रहा हूं ऊपर? mg sin थीटा, mg sin थीटा, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? l। तो
तो इसलिए ये एम जी साइन थीटा इंटू एल होगा। अभी तो पिक्चर लेने का फ़ायदा ही नहीं है, इतना कुछ मेस्ड अप हो गया है सारा। वो साथ साथ देखो तो तब उसकी सही समझ आती है। ओके, किसको? ओके बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अच्छा रिमेंबर, अगर आज ये कंप्लीट नहीं होता ना अभी, तो फिर मैं आज रात को फिर ऑनलाइन क्लास एक रखूंगा, उसमें इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? क्योंकि कल मुझे ये नहीं कराना, कल मुझे आपको डिफॉर्मेशन कराना है, इलास्टिसिटी कराना है। दैट्स वाई आज इसको कंप्लीट करना है, आज सूरत में। अच्छा बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 50 न्यूटन है और एंगल 30 डिग्री है, ठीक है? कितने? 30 डिग्री। अच्छा, उसके बाद ये लेंथ ऑफ स्लोप जो है ये है 10 मीटर्स। लेंथ ऑफ स्लोप इज 10 मीटर्स और ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, राइट? देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपने ये करना है कि जब ये पॉइंट इस पे पहुंचेगा, पॉइंट P पे, तो फाइंड GPE इन ऑब्जेक्ट एट P। चलो GP निकालो जब वो P पे पहुंचेगा कि कितनी GP होगी। यू हैव 3 वेज, तीनों लिखे हुए हैं, जो मर्जी ट्राई करो। फ्रिक्शन नहीं है इसमें, लेट्स से फ्रिक्शन इज नॉट देयर। अब मैं नहीं दे रहा फ्रिक्शन। हाँ, 290 50 250, ओके करो। 3 मेथड हैं, ट्राई करो, डिफरेंट मेथड ट्राई करो। फ्रिक्शन नहीं है तो वो 2 मेथड हो गए। आप चूंकि फ्रिक्शन तो नहीं है, वो आगे वाले 2 इनमें से कोई ट्राई करो। देखो ना, mg मतलब वेट मैंने वही रखा और मैंने l को रिजॉल्व किया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया? l साइन थीटा। तो ये हाइट है, तो मैंने mgh लगाया, ये h था, ये फार्मूला है mgh। फिर मैंने कहा नहीं, वर्क वाला लगाना है, तो वर्क वाला क्या होएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस l है और फोर्स कितनी लग रही है? इसका कंपोनेंट, इसके वेट का कंपोनेंट, ठीक है? और वो कितना होएगा? F इज mg साइन थीटा। देखो, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आप उतनी फोर्स लगा रहे हो जितना डाउन द स्लोप उसका कंपोनेंट लग रहा है, राइट? mg साइन थीटा तो डाउन लग रहा है, आप तो नहीं लग रहा, लेकिन आप कांस्टेंट स्पीड पे लेके जा रहे हो तो आपको उतनी फोर्स लगानी है जितनी फोर्स डाउन द स्लोप लग रही है, तो वो mg साइन थीटा है। तो दैट्स व्हाई आप इन दोनों, देखो दोनों एक ही हैं, एक ही चीज है। आप इसमें फॉर्मूला वैल्यूज लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर 250, ठीक है? ओके बेटा, नेक्स्ट एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हो नहीं सकता कि एक चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में होती है, उनकी लेंथ चेंज करने से होती है, ठीक है? तो इसमें एक आगे, बहरहाल हमने आगे भी पढ़ना है ये, लेकिन चूंकि एनर्जीज यहाँ आ रही हैं तो हमें यहाँ पढ़ लें, इट्स बेटर। आपको एक याद है ये वाला फॉर्मूला, ये, या इसको हम F इज इक्वल टू के ई लिखते थे या के एक्स लिखते थे, हुक्स लॉ। ये है हुक्स लॉ, ठीक है? सो दिस इज हुक्स लॉ, रॉबर्ट हुक्स लॉ। इसमें ये डेल्टा एल क्या है? डेल्टा क्या होता है? चेंज। L is length. Change in length can be extension, change in length can be compression, right?
एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। और कंप्रेशन क्या होता है? ओरिजिनल लेंथ माइनस कंप्रेस्ड लेंथ। ये भी इजी है, हमें पता है इस चीज का, राइट? ये बहरहाल आगे भी हमने जो डिफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ना है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि एनर्जीज में आ रहा है तो हमें यहां पे पढ़ना पड़ रहा है। ये तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमें ऑलरेडी पता हैं। क्या दोबारा बताऊं? ये तो हुक्स लॉ है, F is KL, the extension produced in object is directly proportional to applied force provided elastic limit has not been exceeded. तो F is equal to K delta L। K स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट होता है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ होती है। चेंज इन लेंथ कैन बी एक्सटेंशन, इट कैन बी कंप्रेशन। एक्सटेंशन है तो न्यू लेंथ माइनस, एक्सटेंशन में लेंथ बढ़ जाती है ना, तो न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल करते हैं। कंप्रेशन में लेंथ कम हो जाती है, कंप्रेस स्प्रिंग पे बैठते हो तो वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, तो इसलिए उसमें ओरिजिनल माइनस कंप्रेस्ड होता है। अच्छा, अब बेटा जो कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो यूजुअली हमें जो पता है वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? या तो वो होता है स्प्रिंग और या होता है रबर बैंड। अच्छा, इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, बिल्कुल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार ये निकालनी कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/2F into delta L, and remember delta L can be extension, it can be compression as well। लेकिन हम अब E नहीं लिखेंगे, हम ओवरऑल लिखेंगे delta L is the term which is change in length which can be extension, which can be compression। ठीक है? अच्छा, अब आपको पता है F is K delta L होता है। अगर मैं F की जगह वो लिख दूं ये, तो क्या बन जाएगा ये? यार फोन को छोड़ दो बेटा, F की जगह मैं लिख दूं K डेल्टा L। ये देखो ना, F की जगह K डेल्टा L लिखा तो ये डेल्टा L ऐसे ही आ गया। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला क्या आ गया? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ K डेल्टा L स्क्वायर, या हाफ K E स्क्वायर, या हाफ K X स्क्वायर। मतलब आप देखो ना, आप डेल्टा L की जगह आप E भी लिख सकते हो, आप डेल्टा L की जगह X भी लिख सकते हो। तो ये जो है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूलाज हैं। K गिवन होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है? K इज इलास्टिक कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, और ये K किसके इक्वल होता है? फोर्स ओवर चेंज इन लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है? और हर मटेरियल का K डिफरेंट होता है। ठीक है? जो ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग होते हैं, जैसे गाड़ी के शॉक हैं, अब गाड़ी के शॉक में हार्ड स्प्रिंग है, थिक कॉइल्स होती हैं, उन्होंने पूरी गाड़ी के वेट और पैसेंजर के वेट को बियर करना होता है, इसलिए उनकी K की वैल्यू बहुत हाई होती हैं। इसी तरह जो स्लैंकी स्प्रिंग होते हैं, सॉफ्ट स्प्रिंग होते हैं, उनकी K की वैल्यूज़ बहुत कम होती हैं। ठीक है? इवन ये जो आपने बॉल पॉइंट्स कहीं ने उठाए हुए होंगे उसके अंदर भी स्प्रिंग होता है। ठीक है? तो ये भी स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग, जो स्प्रिंग इजीली डिफॉर्म हो सके इजीली, उसके K की वैल्यू लो होती है। और जो स्प्रिंग जो है डिफिकल्ट टू डिफॉर्म हो, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड या स्ट्रेच हो, तो उसके K की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो एक्चुअली K डिटरमिन्स द फोर्स दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और K डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एज वेल। जितना K ज्यादा होगा उतना वो मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है? ओके, ये चेंज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ क्या है? किस में? जो फॉर्मूला में थोड़ा जगह कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम। इसीलिए तो ये डेल्टा एल स्क्वायर हो गया ना, सेम। और डेल्टा एल कैन बी एक्सटेंशन, इट कैन बी कंप्रेशन। अच्छा, टाइम क्या हुआ है भाई? 11? हाँ, 10:54। 10:54, बस लास्ट 6 मिनट्स। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा हाँ, एनर्जी कन्वर्जन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आज का काम ये वाला है, एनर्जी कन्वर्जन इक्वेशंस और स्टेप्स। देखो बेटा, डिफरेंट सिनेरियोज में एनर्जी कन्वर्ट होती है।
कैसे? लेट्स से अगर आप किसी हम रोलर कोस्टर की बात करें, ये तो आपको पता है कि रोलर कोस्टर यहाँ पे जो बेल्ट होती है वो उसको एक्सेलरेट करवाती है यहाँ तक, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे उसकी मैक्स, अब गौर से देखना है, ये मैक्स काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसे ही है। फिर जब वो ऊपर जाती है रोलर कोस्टर, तो अब तो बेल्ट से वो हट गई ना उसके साथ इंजन लगा हुआ है, ना बेल्ट है, कुछ भी नहीं है। ऊपर वो जा रही है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है? अब क्या होता है कि यहां से जब ये रोलर कोस्टर ऊपर जा रही है तो ये स्लो डाउन होती जा रही है, स्लोज डाउन, ऐसे ही है ना? अब वो स्लो डाउन क्यों होती है, क्या वजह है? क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीपी में कन्वर्ट होती जा रही है, राइट? और उसके बाद जब ये रोलर कोस्टर लेट्स से बिल्कुल यहां पे पहुंच जाती है, इस जगह पे, टॉप पॉइंट पे, इस पॉइंट पर वो मोमेंटरीली रुकती है, मोमेंटरीली। तो इसका मतलब है जब वो रुकती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो हो गई, जो इधर मैक्सिमम थी उधर जीरो हो गई, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? जीपीई में। तो बेटा यहां पे जीपीई इज मैक्स, यहां क्या है? जीपीई इज मैक्स। अच्छा, एक और बात, जो एनर्जी बेटा स्टार्ट में होती है, ये स्टार्ट पॉइंट था ना। देखो एनर्जी कन्वर्जन्स तो बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, टू मेनी एग्जांपल्स। हमारी पूरी लाइफ में एनर्जी तो चल रही होती है सारी, जितने ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, सब में एनर्जी होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। आप व्हीकल्स में, कार्स में आते हो, एनर्जी केमिकल से काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। आप स्टेयर्स क्लाइंब करके आते हो, आपकी बॉडी की केमिकल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, मेरी ज़्यादा एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है, ये बात आपको पता ही है ना। टीचर्स की ज़्यादा एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है? तो मेरी सारी ज़्यादा एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती जा रही है। तो एनर्जी कन्वर्जन इज़ एवरीवेयर। आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग में जो नेचुरल गैस आती है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो हीट में, थर्मल में कन्वर्ट होती है, तब कोई काम हो रहा होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस चलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे आती है अप्लाइंस में, और उसको फिर साउंड, लाइट, हीट या रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कन्वर्जन इज लाइक एवरीवेयर अराउंड अस। हमने क्या देखना है? हमने एक एक्सप्रेशन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जो एनर्जी कन्वर्जन जहां से स्टार्ट होगी, स्टार्ट, शुरू वाला जो प्रोसेस, उसको हम कहेंगे इनपुट एनर्जी। बेटा ये समझ लो, ये एक्सट्रैक्शन है, जितने टॉपिक पढ़े हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और बस यहीं पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूं विद इन 2-3 मिनट्स। द इनपुट एनर्जी इज ऑलवेज एट द स्टार्ट, इनपुट इज ऑलवेज एट द स्टार्ट। और आपने देखना है हर प्रोसेस में इनपुट स्टार्ट कहां से हो रहा है, उस टाइम जो एनर्जी होगी वो इनपुट एनर्जी होगी। तो हम लिखेंगे कि इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू, अब जो एंड पॉइंट होगा ये वाला, दिस इज एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे आउटपुट एनर्जी होगी। अब ये आउटपुट दो टाइप्स की होएंगी, एक होएगी यूजफुल और एक होएगी वेस्टेड या अनवांटेड। ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल कि हम कहें दिस इज लॉ ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी भी शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ें, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ें। लॉ ऑफ इंट्रोपी कि जब आप एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो वो 100% कन्वर्ट नहीं होती, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं होती। अगर 100% हो जाए तो उसमें उस सिस्टम का डिसऑर्डर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, डिसऑर्डरनेस हो जाएगी और वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए 100% एफिशिएंट नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिसऑर्डरनेस हो जाएगी फिर, ठीक है? अच्छा, जिस तरह आप 24 घंटे पढ़ते रहो तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। एफिशिएंसी तो यही है ना, 24 घंटे पढ़ते रहो भाई, आप कहोगे भाई मैंने तो एफिशिएंसी दिखाई है, लेकिन उसका रिजल्ट ये होगा कि आप बीमार पड़ जाना है, आपने कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जानी है, राइट? अच्छा, एनीवेज, तो अब यहां हम लिखेंगे इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जीज, और सम टाइम यहां भी बेटा एनर्जीज हो सकती हैं। इनपुट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब यहां पे एक और होगा, इसमें आप लिखोगे यूजफुल आउटपुट प्लस वेस्टेड। ये आपने ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद डिफरेंट एंगल से पढ़ा हो एफिशिएंसी के अंदर, ठीक है? सो इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट प्लस वेस्टेड, ठीक है? अब देखो, अगर लेट्स से इसकी मास 100 किलोग्राम है
और इसकी स्पीड यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड रोलर कोस्टर की, और ये ऊपर आती है। हाँ, और ये जो हाइट गेन करती है यहाँ पे, इसकी जो हाइट है वो है लेट्स से कितनी होनी चाहिए, 400 इंटू 50 कितना होता है, 20,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 20,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना होता है, 200 नहीं 200 डिवाइड बाय 100 है ना, 200 तो 200 डिवाइडेड बाय 10 इज 20, तो 20 को हम कर लेते हैं 12 मीटर। ओके, ताकि आंसर ठीक आए ना। ओके, क्वेश्चन ये है बेटा कि 100 किलोग्राम आ रहा है, मास है, उसकी स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर ये ऊपर आई और ऊपर आके यहाँ पे ये रुक गई, इट कम्स टू रेस्ट, मतलब इसकी यहाँ स्पीड 0 है और ये 12 मीटर की हाइट गेन करती है। तो आप ये बताओ कि इसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ है, इसमें थर्मल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है। अब ये द वे डिफरेंट वे टू आस्क द क्वेश्चन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ है, या इस ट्रैक की लेंथ दे के कहेगा फ्रिक्शन कितनी है, ये बताओ। करना आपने एक ही काम है, ये वाली इक्वेशन लगानी है। तो इनपुट पे कौन सी एनर्जी है, व्हाट एनर्जी इज एट इनपुट, काइनेटिक। तो आप कहोगे ये काइनेटिक है जो हाफ mv² है। यूजफुल आउटपुट क्या है, mgh, और वेस्टेड क्या है, वेस्टेड है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, हीट बनी है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, या इंटरनल एनर्जी कहते हैं, या थर्मल एनर्जी कहते हैं, जो लॉस्ट एनर्जी ये वाली होती है। तो आपको ये भी पता है डाटा, आपको ये डाटा भी पता है, इसको इधर ले आओगे माइनस कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपके पास वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने ये वाले लेंथ की ट्रैक हमें दी हुई है, या ये एंगल दिया हुआ है ये, और ये हाइट दी हुई है, और वो कहता है बताओ आप फ्रिक्शन है कितनी, ये निकाल के दिखाओ। तो ये इससे अगला स्टेप होगा। आई होप मैं लिख नहीं रहा लेकिन विजुअलाइज करा रहा हूं। वर्क डन क्या होता है, फ्रिक्शन इनटू लेंथ ऑफ ट्रैक। हाँ, तो लेंथ ऑफ ट्रैक आप निकाल लोगे, अगर गिवन हुई तो ठीक है, अगर ये एंगल और ये साइड गिवन हुई तो आप ये निकाल लोगे मैथमेटिकल ट्राइंगल का मेथड यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके, क्योंकि राइट एंगल है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे और हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, वो आपके पास लेंथ आ जाएगी, और वो आप फ्रिक्शन इनटू दैट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर वो क्या कौन सा फॉर्मूला बताए थे? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किसके इक्वल है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन इनटू लेंथ। तो लेंथ इस ट्रैक की लेंथ, ये अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैसे निकालेंगे, ये लेंथ निकालनी है, ये हाइट पता है 12 मीटर है, अली आप कर सकते हो यार, तो इजीली आ जाएगा यार, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ कैसे, देखो अब यार इतने ट्विस्टर तो होते हैं ना, वो आपको डायरेक्ट सब कुछ तो नहीं बताएगा कि बेटा घबराना नहीं है, देखो ये एफ है, ये एल है, फार्मूला होता है वर्क इज एफ इंटू डिस्टेंस, तो बेटा ये लगाओ जरा और कैलकुलेटर उठाओ और वैल्यूज डालो और आंसर, ये तो नहीं कहेगा ना, जाहिर है वो ट्विस्ट डालेगा, बीच में चेंज करेगा उसको। तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि आपसे वो ये लेंथ उसने नहीं दी आपको, ये हाइट दी है, एंगल दिया है, आप लेंथ खुद निकालोगे उससे। ठीक है, सही है, ओके चलें बेटा।